Welcome student to the first class of electrochemistry. Myself Santanu sir, and I will take your physical portion from today, and the topic will be the chapter electrochemistry. The first lecture solution has been posted in your JVM Family YouTube channel. Solution chapter that has been completely done by Amar sir. You can go in that channel and complete your solution chapter. From today I will start with electrochemistry. Student, the word electrochemistry itself clearly mentions that the chapter belongs to the resultant of electricity and chemistry. Means what? Now both the things will be merged in this electricity as well as what? The chemistry. And if I talk, the chapter therefore will be divided into two parts. What are those two parts, student? Now in the first part we will discuss what? The chemical reaction giving electricity, and in the second part we will discuss what, student? Now electricity giving rise to chemical reaction. So student, electricity giving rise to chemical reaction will be dealt under the topic electrolysis. I hope no problem. ठीक है. और स्टूडेंट, chemical reaction giving rise to electricity will be dealt under the topic electrochemical cell. So this chapter will be divided into two parts likewise. इस तरीके से ये दो पार्ट में ये चैप्टर मेरा क्या रहेगा ना, डिवाइडेड रहेगा. ठीक है, फाइन. सो स्टूडेंट, बिफोर गोइंग इनटू दिस टॉपिक, इस दोनों टॉपिक के अंदर एंटर होने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड few terms that will be necessary for describing this chapter properly. सबसे पहला दो टर्म को हम लोग बढ़िया से समझना होगा. कुछ एक टर्म है यहां पर, then only we can enter into these to get complete understanding of the chapter. So student, let us enter into those few important basic topics that you have to know. Student, I want to say you one thing, that you just take out your proper fair copy and do the notes as I am delivering the lecture. Side by side you also proceed with having the notes in your copy. Okay, and since this video will be available in the YouTube channel of JVM Family, so no problem, you can see it 100 times and there will be no issue of buffering, no issue of sound quality and nothing. Okay, fine. Just religiously follow the lecture, make the notes as if I am teaching you in the classroom. Okay, so if that comes up in your mind that yes, religiously I have to do the things, then I don't think so there will be any barrier between us regarding the teaching. I don't think so there will be any barrier in us. It's only in your mind that yes, I have to make up the study of Santanu sir's class through this mode only. Okay, fine. So with that note, let us just go ahead. So some basic concepts that we have to understand. So some basic concepts that we have to understand before proceeding into these topics. Okay, what are those some basic concepts that we have to understand, student? The first and foremost, student, very important term that is going to come up is resistance. The first important concept that is going to come up is what? ना रेजिस्टेंस. सबसे पहला वर्ड जो आएगा यहां पर दिमाग में वो होगा रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस स्टूडेंट मेरे लिए क्या है? यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, मैक्सिमम स्टूडेंट नोज व्हाट इज रेजिस्टेंस. क्या है रेजिस्टेंस स्टूडेंट? मैक्सिमम स्टूडेंट नोज. यू विल क्लियरली आंसर मी, सर ये तो है ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल सा भाषा में अगर मैं बात करूंगा यहां पर रेजिस्टेंस मेरे लिए क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ क्या स्टूडेंट? ना इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी. आई होप नो प्रॉब्लम, क्लियर. सो रेजिस्टेंस का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा पहुंचाना, सिंपल सा आइडिया. एंड स्टूडेंट इन फिजिक्स in class 10 itself, I think so 9 and 10 itself, I am sure about that one, that resistance is denoted by capital R, and it has been studied by you that it is directly proportional to what, student? The length of the conductor.
लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, वो कंडक्टर वायर के फॉर्म में ही जनरली लेते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑल्सो यू हैव स्टडीड, व्हाट इज दैट स्टूडेंट? ना रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है. नाउ स्टूडेंट, इफ आई मर्ज दिस टू, अगर मैं ये दोनों को मर्ज कर दूं स्टूडेंट, देन स्टूडेंट व्हाट आई विल गेट? ना रेजिस्टेंस is proportional to L by A. I don't think so. Any problem in understanding this much? Fine. Length of the conductor and area of cross section of the conductor. So this is your resistance which you are already familiar with. अगर मैं फर्दर जाऊं स्टूडेंट, अगर मैं फर्दर इसके अंदर एंटर करूं स्टूडेंट, तो फिर मेरे लिए क्या आएगा? रेजिस्टेंस, आई विल ब्रिंग वन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आई विल ब्रिंग वन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट विल बी रेफर्ड एज रो, दैट कांस्टेंट विल बी रेफर्ड एज रो L by A. मैं इस तरीके से इसको करूंगा. यू आर ऑल अवेयर, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं. एंड स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो अवेयर विद दिस कॉन्स्टेंट टर्म, आप लोग सब कोई अवेयर हो इस कॉन्स्टेंट टर्म से स्टूडेंट. दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. क्या इसका नाम है स्टूडेंट? ना रेजिस्टिविटी. ये वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से भी आप लोग वाकिफ हो, यू आर ऑल फेमिलियर दैट दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. नाउ स्टूडेंट, इफ आई फर्दर प्रोसीड थ्रू दिस वन, यहां पर I will say the unit of this resistance, ये भी तुम लोग जानते हो यहाँ पर, that is क्या स्टूडेंट? ना ओम. ओम इज द रेजिस्टेंस, और इसका सिंबलाइजेशन अगर मैं करता हूं, दिस मच इज ऑल्सो क्लियर टू यू. तो ये तुम जानते हो. लेकिन स्टूडेंट, मजे की बात क्या है यहाँ पर ना, इस चैप्टर में वी विल नॉट टॉक अबाउट एनी सॉलिड कंडक्टर. कोई सॉलिड कंडक्टर लेके हम काम नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, फाइन. तो हम क्या लेके काम करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर? ना आई विल वर्क विथ सॉल्यूशन. यहां पर जो भी मेरा काम होगा सॉल्यूशन, और जहां ये सॉल्यूशन वर्ड आ जाएगा स्टूडेंट, मेरा सारा पिक्चर, सारा विजुअलाइजेशन बदल जाएगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. यहां पर कैसे कंप्लीटली चेंज हो जाएगा स्टूडेंट? यहां पर ना रेजिस्टेंस जब मैं बात करता हूं यहां पर, ठीक है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट स्टूडेंट? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या? करंट. करंट, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. Resistance belongs to solid conductor and we talk about what student? The obstruction of flow of electron. And once I come up with solution phase, जहां मैं solution phase पर आ जाऊंगा स्टूडेंट, तो फिर resistance मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखेगा, ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा. मेरे लिए जस्ट इसका रेसिप्रोकल टर्म विल become much more important and that is what student? ना कंडक्टेंस. वो मेरे लिए क्या हो जाएगा यहां पर? वो टर्म मेरे लिए क्या हो जाएगा? ना कंडक्टेंस. ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा स्टूडेंट. एंड इट्स सिंबल गोज एज स्टूडेंट व्हाट? ना कैपिटल जी. इसका सिंबल क्या होगा? ना कैपिटल जी होगा. ये मेरे लिए मायने रखेगा. तो फिर स्टूडेंट, अगर तुरंत बात होगा कि सर रेजिस्टेंस तो था, फ्लो ऑफ सॉरी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर कंडक्टेंस क्या होगा? रेसिप्रोकल में बात करेंगे यहां पर. कंडक्टेंस मेरे लिए क्या हो जाएगा यहां पर? ना ये कितना बढ़िया से मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा सकता है, यही हो जाएगा यहां पर, ठीक है, फाइन. तो मेरा बात क्या हो जाएगा यहां पर? ना इट इज द ईज ऑफ फ्लो ऑफ क्या स्टूडेंट? ना इलेक्ट्रॉन जब सॉलिड कंडक्टर होगा. लेकिन स्टूडेंट, मेरा यहां पर सारा काम होगा किससे? ना सॉल्यूशन फेज में. तो इसीलिए मैं यहां पर स्ट्रेट कट लिखता हूं. कंडक्टेंस क्या है? ये तुम्हारा डेफिनेशन भी हो गया. ईज ऑफ फ्लो ऑफ क्या स्टूडेंट? आयंस. वेरी वेरी सिंपल. यहां पर ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस तुम्हारे लिए ये हो जाएगा यहां पर. दैट विल बी योर सिंपल सा कॉन्सेप्ट. कोई दिक्कत नहीं, फाइन. ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस. और अगर थोड़ा सा आगे जाओगे यहां पर आगे, तो तुम बोल सकते ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस थ्रू क्या स्टूडेंट? यहां पर ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट भी बोल दोगे तो दैट इज अंडरस्टूड. सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ क्या हो गया? ना कंडक्टेंस. ये मेरा डेफिनेशन किसका हो गया यहां पर? ना कंडक्टेंस हो गया. आई होप नो प्रॉब्लम टिल हियर, एवरीथिंग इज ओके, फाइन. अब स्टूडेंट आते हैं यहां पर नेक्स्ट बात करने के लिए. वो क्या स्टूडेंट? यहां पर ना रेजिस्टेंस वाज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंडक्टेंस मेरे लिए क्या है? ना ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस थ्रू क्या? इलेक्ट्रोलाइट. अब स्टूडेंट, आयंस के बारे में जहां मेरा बातचीत शुरू होगा स्टूडेंट, बहुत सारा चीज आ जाएगा तुरंत यहां पर. वो पहले एक आध करके डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. व्हाट आर दोस स्टूडेंट? व्हाट आर दोस डिस्कशन स्टूडेंट? यहां पर वो क्या डिस्कशंस है यहां पर ना? सबसे पहला स्टूडेंट यहां पर एक चीज बताना चाहिए. कंडक्टेंस जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, ये फ्लो ऑफ आयंस किस किस चीज पर मेरा डिपेंड करेगा यहां पर, ठीक है. मतलब अगर बोलेगा यहां पर कि कंडक्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वाला. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या स्टूडेंट? ना कंडक्टेंस. फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस.
और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस में स्टूडेंट सबसे पहला मेरे लिए होगा नंबर 1 जो मेरे लिए आएगा वो क्या यहां पर ना, आप क्या इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, व्हाट इलेक्ट्रोलाइट यू ऐड। सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेरा बोलने का मतलब क्या है स्टूडेंट यहां पर ना, नेचर ऑफ आयंस, यहां पर क्या आयंस आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो। नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 2 मेरे लिए आ जाएगा यहां पर, वो क्या यहां पर ना, साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस स्टूडेंट ये मेरे लिए आ जाएगा। साइज ऑफ आयंस का क्या चक्कर हो जाएगा यहां पर स्टूडेंट ना, जितना बड़ा साइज यहां पर उतना ही मेरे लिए क्या हो जाएगा ना, हाइड्रेशन कम हो जाएगा। ये चीज दिमाग में रखना, यहां पर साइज ऑफ आयंस क्यों कंडक्टेंस पर मेरे लिए भारी पड़ेगा ये वाला टर्म ना, वी आर ऑल फेमिलियर स्टूडेंट, वो क्या ना, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ये क्लास 11 में पढ़े हैं, हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या स्टूडेंट ना, साइज, हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जितना छोटा साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा स्टूडेंट, उसको वाटर मॉलिक्यूल, अगर मैं वाटर लेता हूं जिस पर सॉल्यूशन बना हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल उसको उतना ही क्या करेगा, घेर लेगा इस तरीके से, लाइक दिस, विच वी रिफर्ड एज क्या ना, हाइड्रेशन हो गया। यहां पर जितना बड़ा साइज हो जाएगा, यहां पर जितना बड़ा साइज हो जाएगा उसको उतना बढ़िया से वाटर मॉलिक्यूल घेर नहीं पाएगा, उतना बढ़िया से वाटर मॉलिक्यूल घेर नहीं पाएगा यहां पर, उतना बढ़िया से वाटर मॉलिक्यूल घेर नहीं पाएगा यहां पर, ठीक है फाइन। तो जितना छोटा साइज होगा उतना बढ़िया से क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। इसके कारण ये वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहां पर ना, बल्की हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ना, बल्की हो जाएगा। इसीलिए इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट ना, घट जाएगा, यहां पर इसका मूवमेंट घट जाएगा। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है साइज ऑफ आयंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हो गया यहां पर ना, जितना छोटा साइज यहां पर, ठीक है, उतना ही गड़बड़ हो जाएगा यहां पर क्या स्टूडेंट ना, कंडक्टेंस। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल छोटा साइज यहां पर, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा यहां पर ना, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा ना, कम हो जाएगा यहां पर। आई होप यू हैव गॉट इट। यहां पर तो हाइड्रेशन और साइज का ये कॉन्सेप्ट हो गया, और कंडक्टेंस और साइज का तब क्या हो गया यहां पर ना, इट इज क्या स्टूडेंट ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, ठीक है फाइन, आई होप नो प्रॉब्लम। जितना छोटा साइज उतना ज्यादा हाइड्रेशन, उतना मूवमेंट गड़बड़ा जाएगा, मतलब क्या ना, कंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज छोटा कंडक्टेंस कम, ठीक है, साइज बड़ा कंडक्टेंस बेटर, क्यों ना, ड्यू टू हाइड्रेशन। तो इसीलिए साइज ऑफ आयंस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट टू गेट। फाइन, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नंबर 3 में मेरा क्या पॉइंट आ जाएगा यहां पर, 3 में स्टूडेंट यहां पर कि नेचर ऑफ, ऑब्वियसली ये पॉइंट आएगा स्टूडेंट, नेचर ऑफ क्या स्टूडेंट ना, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा यहां पर, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट बोलने का मतलब क्या है ना, मेन फैक्टर यहां पर जो काम आएगा, तुम लोग पढ़े हो क्लास 11 में इन फिजिक्स, दैट इज क्या, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यहां पर अगर सॉल्यूशन का विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा यहां पर, तब मूवमेंट ऑफ आयंस विल बी डेफिनेटली क्या ना, लोअर डाउन। कोई दिक्कत नहीं, फाइन, कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है यहां पर। नेक्स्ट स्टूडेंट 4th में चले जाते हैं यहां पर, जिस पर मेरे लिए ये डिपेंड करेगा डेफिनेटली, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बात वही है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी माय 4th पॉइंट दैट यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुली रिमेंबर, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज गोइंग टू कम अप, दैट इज व्हाट स्टूडेंट यहां पर ना, कंडक्टेंस, ठीक है, ऑफ एनी सॉल्यूशन इज क्या स्टूडेंट यहां पर, ठीक है फाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है ना, टेम्परेचर। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहीं पर अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट रेजिस्टेंस के बारे में, यहीं पर अगर मैं बात करूंगा रेजिस्टेंस के बारे में, तो मेरे लिए क्या आएगा स्टूडेंट यहां पर ना, रेजिस्टेंस इज क्या स्टूडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पर ये चक्कर क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट्स द पॉइंट ओवर हियर, कैसे ये हो गया सर कि यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा यहां पर। नाउ द टोटल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलो यहां पर, दोनों में अलग है। यहां पर
कैसे ना, ये मैं सॉलिड कंडक्टर पर फोकस कर रहा हूं और ये मैं सॉल्यूशन पर फोकस कर रहा हूं, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। तो यहां पर सॉलिड कंडक्टर में क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर लेट दिस इज योर सॉलिड कंडक्टर एंड स्टूडेंट यू आर ऑल फेमिलियर, मेटालिक बॉन्डिंग आप लोग पढ़े हो क्लास 11 में। यहां पर ये सब हम लोग कहते हैं कर्नल्स, वी कॉल इट कर्नल्स। यहां पर क्या कहते हैं ना, कर्नल्स कहते हैं, क्लास 11 में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग जब मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। सो दिस इज कॉल्ड कर्नल्स। कर्नल्स है क्या स्टूडेंट यहां पर, दैट इज न्यूक्लियस। ये क्या है ना, न्यूक्लियस है, प्लस क्या है ना, कोर इलेक्ट्रॉन है। अब तुम तुरंत पूछोगे सर व्हाट इज कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या है स्टूडेंट यहां पर ना, इफ आई जस्ट लीव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैंने छोड़ दिया, वो जो बचेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद बाकी सब इलेक्ट्रॉन कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या ना स्टूडेंट, इफ आई टेक द केस ऑफ सोडियम, तो सोडियम में मेरा क्या है ना, 2 है, 8 है और क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, वी कॉल दिस एज क्या ना कर्नल। इसमें क्या रहेगा ना, न्यूक्लियस रहेगा और क्या रहेगा ना, कोर इलेक्ट्रॉन। और ये मेरा है क्या ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यू आर ऑल फेमिलियर, इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये तुम लोग बढ़िया से जानते हो। यहां पर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो करता क्या है स्टूडेंट यहां पर ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड दिस कर्नल्स एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इस तरीके से ये मूव करता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, टेक प्लेस करता है यहां पर। आई होप नो प्रॉब्लम, ओके फाइन। ना स्टूडेंट क्या होगा ना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं हीट करके मान लो टेम्परेचर बढ़ा देता हूं इस कंडक्टर का, तो कर्नल्स अपने जगह पर वाइब्रेट जोर जोर से, ऐसे ही कर रहा है यहां पर, और ये जोर जोर से क्या करेगा ना, वाइब्रेट करेगा, रोटेट करेगा यहां पर, ठीक है, और ट्रांसलेट भी करेगा यहां पर। 3 मूवमेंट्स बिकम्स मच मोर विगोरस यहां पर, रोटेशनल, वाइब्रेशन एंड ट्रांसलेशनल। ये वाइब्रेशन, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, ये कर्नल्स का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, which will obstruct the flow of electron, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। इसीलिए स्टूडेंट अगर टेम्परेचर मेरा बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस मेरे लिए क्या हो जाएगा यहां पर, टेम्परेचर अगर बढ़ गया, रेजिस्टेंस भी मेरे लिए क्या हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। आई एम सॉरी स्टूडेंट ओवर देयर, दिस विल बी व्हाट स्टूडेंट यहां पर ना, रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, यहां पर हमको बोलना चाहिए था कंडक्टेंस, एनीवे जाने दो यहां पर। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है यहां पर ना, टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा, जो हम लोग पढ़े थे यहां पर, ठीक है फाइन। और यहीं पर अगर मैं सॉलिड कंडक्टर के लिए जी के बारे में बात करूं, सॉलिड कंडक्टर के लिए जी के बारे में बात करूंगा, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या यहां पर, टेम्परेचर। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक स्टूडेंट, ओके फाइन, इसको जी लिखना चाहिए था। एनीवे यहां पर यू हैव अंडरस्टूड द फैक्ट, आपको बढ़िया से फैक्ट समझ में आ गया, लिखने पर मत जाओ, यहां पर आपको फैक्ट समझ में आ गया कि क्या हो रहा है यहां पर। सो दिस वाज द केस इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर, इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर ये था। बट स्टूडेंट इफ आई गो इनटू सॉल्यूशन फेज, स्टूडेंट क्या है यहां पर, सॉल्यूशन अगर मैं बात करूंगा तब क्या है स्टूडेंट, लेट अस टेक ए सॉल्यूशन। इसमें मान लो मैंने भर दिया है यहां पर Na+ और Cl- में, ठीक है फाइन। तो अगर मैं यहां पर इसको हीट कर दूं, अगर मैं इसको हीट कर दूं स्टूडेंट यहां पर, तब क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ आयंस विल बी मच मोर रैंडमाइज्ड, मच मोर फास्ट, मच मोर विगोरस। दैट विल क्या कर देगा स्टूडेंट यहां पर ना, कंडक्टेंस को बढ़ा देगा। सो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया स्टूडेंट, टेम्परेचर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फैक्ट्स वेरी वेरी वेल यहां पर। तो ये जो इनिशियल मेरा फोकस था, उम्मीद है सबको मैं समझा पाया यहां पर, होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या हमने देखा स्टूडेंट यहां पर न, रेजिस्टेंस टर्म से मैंने काम शुरू किया, बट आई हैव स्विच्ड ओवर टू क्या यहां पर ना, जस्ट इट्स रेसिप्रोकल टर्म, दैट इज कंडक्टेंस। एंड फर्दरमोर आई टोल्ड कि इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन क्या स्टूडेंट, द सॉल्यूशन फेज पर हम फोकस करेंगे। यहां पर जो भी फोकस होगा वो सॉल्यूशन फेज पर मेरा क्या होगा ना, फोकस होगा यहां पर, ठीक है फाइन, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद सॉल्यूशन। और जहां सॉल्यूशन फेज पर फोकस हो जाएगा स्टूडेंट, यू आर ऑल फेमिलियर, कैरियर ऑफ करंट मेरे लिए क्या होगा ना, आयंस होगा। आयंस विल बी द कैरियर ऑफ करंट, ठीक है फाइन। तो फिर आयंस अगर कैरियर ऑफ करंट होगा यहां पर, तो फिर क्या क्या फैक्टर पर मेरा कंडक्टेंस डिपेंड करेगा ना, दीज आर द फैक्टर्स जिस पर मेरा कंडक्टेंस डिपेंड करेगा। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। और स्टूडेंट ये वाला मेरा इस तरीके से हो गया। एक सवाल मैं तुमको यहां पर देता हूं स्टूडेंट, इस कंडक्टेंस पर बहुत बार कंपटीशन वगैरह में भी आ चुका है, तुम्हारे एनसीईआरटी का सवाल है यहां पर, ठीक है। अगर मैं तुमको पूछता हूं कि तुमको मैंने दे दिया लिथियम प्लस, ठीक है, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, ये 3 तुमको मैंने दे दिया यहां पर, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट एक्वस सॉल्यूशन में गिव द ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस ऑफ दीज आयंस
इन एक्वस सोल्यूशन, अगर तुमसे पूछ लिया जाए यहां पर, तब तुम्हारे लिए क्या होगा स्टूडेंट यहां पर ना, ये छोटा साइज, ये उसके बाद बड़ा, ये और बड़ा, तो जितना छोटा साइज हो जाएगा हाइड्रेशन उतना ज्यादा हो जाएगा, बल्कि उतना ज्यादा हो जाएगा, मूवमेंट उतना ही क्या हो जाएगा, स्लो। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस अगर तुमसे पूछा जाए यहां पर, तो फिर मेरे लिए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल द आंसर ऑफ कंडक्टेंस ना, पोटेशियम का कंडक्टेंस सबसे बढ़िया और लिथियम का क्या हो जाएगा, सबसे खराब, सबसे खराब। सो इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन जो तुमको दिमाग में रखना है यहां पर जब भी तुम आगे की पढ़ाई करो। फाइन, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीन। तो आयन्स होने के कारण किस किस फैक्टर पर मेरा कंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है, ये पूरा का पूरा लेखा जोखा आ गया। लास्ट वाला पॉइंट मेरे लिए बहुत खास था, क्या ना, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मूवमेंट ऑफ आयन्स बढ़ जाएगा, इसीलिए कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यही चीज उल्टा हो जाएगा इफ आई टेक सॉलिड कंडक्टर वेयर कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टू फैक्ट। नाउ स्टूडेंट लेट अस अगेन गो बैक टू आवर क्या स्टूडेंट ना, मैथमेटिकल वर्सन। मैथमेटिकल वर्सन पर चले जाते हैं यहां पर फिर से, ठीक है, फाइन। तो लेट अस डिस्कस द मैथमेटिकल वर्सन अगेन यहां पर। तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, फटाफट अब देख लेते हैं। तो हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ लिया रेजिस्टेंस पढ़ लिया यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। और स्टूडेंट चल रहा है क्या ना, कंडक्टेंस चल रहा है ना स्टूडेंट। फर्दर वी हैव गॉट ना आर इज इक्वल टू क्या है मेरे लिए ना, आर इज इक्वल टू एल बाई ए। जस्ट इसका यहां पर रेसिप्रोकल मेरे लिए, तो कंडक्टेंस मैथमेटिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट ना, मैथमेटिकली कंडक्टेंस इज क्या, इनवर्स ऑफ क्या यहां पर ना, रेजिस्टेंस। ये मैथमेटिकली हो गया, आई हैव नो प्रॉब्लम, फाइन। सो मैथमेटिकली जहां हो गया इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, दिस विल बी माय वर्किंग फार्मूला। ये वाला मेरा वर्किंग फार्मूला हो गया, किसके लिए ना, फॉर कंडक्टेंस। एंड स्टूडेंट इफ आई गो विद द यूनिट ऑफ दिस वन, इसका अगर यूनिट लेके मैं बात करूंगा तब मेरे लिए क्या हो जाएगा यहां पर ना, इट्स यूनिट विल बी, देखो यहां पर ये था रेजिस्टेंस, तो ये मेरे लिए हो जाएगा ओम इनवर्स, ये हो जाएगा। कभी कभी स्टूडेंट हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, जस्ट इसको उल्टा लिख देते हैं, मो, ये भी मेरा यूनिट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। एंड स्टूडेंट लेटेस्ट यूनिट जो हम लोग यूज करेंगे, ये बहुत कम यूज करेंगे यहां पर, ये बहुत ही कम यूज करेंगे यहां पर, जो लेटेस्ट हम यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, दैट यूनिट इज रेफर्ड एज साइमन। इसको हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग क्या यूज करेंगे ना, साइमन यूज करेंगे स्टूडेंट यहां पर। एंड साइमन स्टूडेंट विल बी रेफर्ड बाय क्या स्टूडेंट यहां पर ना, एस, एस से मेरा डिनोट हो जाएगा, साइमन विल बी द यूनिट ऑफ क्या, कंडक्टेंस। कोई दिक्कत नहीं, फाइन। ना फर्स्ट टर्म इज क्लियर, दैट इज रेजिस्टेंस एंड क्या यहां पर ना, कंडक्टेंस। अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टर्म में जाएंगे, दैट इज क्या स्टूडेंट ना, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मेरे लिए क्या है स्टूडेंट, यहां पर तुम्हारे सामने था, अभी काम किए थे यहां पर, दैट इज रो। मेरे लिए रेजिस्टिविटी क्या है ना, रो है यहां पर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट मैथमेटिकली अगर मैं जाऊं यहां पर कि मैथमेटिकली मेरे लिए रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा ना, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज आर क्या हो जाएगा, ए बाई एल, ए बाई एल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। दिस इज बाई रेजिस्टिविटी, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल इससे भी आएगा, ठीक है, फाइन। ना स्टूडेंट इसका जस्ट ऑपोजिट टर्म जो मेरा सोल्यूशन फेज में मैं काम करवाऊंगा यहां पर, वो क्या स्टूडेंट यहां पर ना, इसका ऑपोजिट टर्म हो जाएगा कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, ये मेरा हो जाएगा यहां पर, इट विल बी कंडक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। कंडक्टिविटी स्टूडेंट मेरे लिए जो सिंबल होगा यहां पर, सबसे पहले वो लिख दूं, दैट सिंबल विल बी के, एंड दिस के इज रेफर्ड एज स्टूडेंट कप्पा, के ए पी पी ए, ठीक है, ये कप्पा है यहां पर, उसी का एक वर्सन यहां पर पहला वाला लेटर के लिया हुआ है, जो कि सिंबलाइज करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसको ना, कंडक्टिविटी को। Okay, no problem. Now student, if I further proceed, then what will be the value of kappa? Now just it is reciprocal of this resistivity. तो kappa मेरे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ना, kappa is inverse of क्या ना, resistivity. I hope no problem. Miss conductivity mathematically is inverse of क्या यहाँ पर ना, resistivity। नाम भी कितना एनालोगस है, कितना बढ़िया से तुमको पता चल रहा है ना स्टूडेंट। इफ आई फर्दर गो यहां पर आगे और मैं अगर बढ़ूं तो k इक्वल टू 1 बाई रो, 1 बाई रो, ध्यान से देखो तो मेरे लिए क्या आ जाएगा ना, 1 बाई आर इंटू क्या हो जाएगा, l बाई ए, चेक कर लो। दिस विल बी ऑल्सो एक्ट एज क्या, फॉर्मूला फॉर माई न्यूमेरिकल्स, ये भी मेरा न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला की तरह काम करेगा। ओके फाइन। ना स्टूडेंट फर्दर इफ आई प्रोसीड यहां पर, और मैं अगर आगे बढ़ूं तब इसका यूनिट मैं लिख सकता हूं, इसका यूनिट मैं क्या लिख सकता हूं, गौर करो, 1 बाई आर, ये 1 बाई आर मेरे लिए क्या है स्टूडेंट यहां पर तुम्हारे सामने है, दैट इज साइमन, दिख रहा है यहां पर।
Or student, if I take length as centimeter, if I take area of cross section as centimeter square, then the situation will be centimeter inverse. I hope no problem. So unit of this kappa will be Simon per क्या centimeter. Okay, no problem. Remember this one, यहाँ पर it is Simon per centimeter. अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये मीटर भी हो सकता है. इफ यू टेक इट दिस वन इज मीटर, इन दिस वन एज मीटर स्क्वायर, देन ये पर मीटर भी हो सकता है. नो प्रॉब्लम, फाइन. सो यूनिट इज दिस वन. फर्दर स्टूडेंट और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी को रीराइट करके लिखते हैं एक नया तरीका से. यहां पर वो देखो स्टूडेंट, वो चीज जानना जरूरी है ना. के इज इक्वल टू क्या, 1/r के बदले में मैं लिख दूंगा यहां पर ना g, ठीक है. और इसके बदले में L/A के बदले में मैं लिख दूंगा g स्टार, ये मैं लिख दूंगा. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर रिमेंबरिंग. सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, बट रिप्रेजेंटेशन को मैंने क्या कर दिया, बदल दिया. एवरीथिंग ओके, फाइन. ना स्टूडेंट, ये जी स्टार के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग को बातचीत करना है, लेकिन ये बातचीत हम करेंगे यहां पर ऑब्वियसली. उसके लिए स्टूडेंट एक टर्म हमको उखाड़ के लाना होगा. दैट इज क्या स्टूडेंट, ये जी स्टार कहता क्या है, व्हाट इज दिस वन. थोड़ा सा ब्लैंक अभी रखते हैं, अभी थोड़ा सा नोट बनाना बंद करना स्टूडेंट, ठीक है. इस ब्लैंक में हमको कुछ लिखना है, बिकॉज आई हैवंट डिफाइंड कंडक्टिविटी येट. इसको डिफाइन अभी तक नहीं किया, अभी करेंगे यहां पर, ठीक है. फाइन, ब्लैंक रखना. वो मेरा डेफिनेशन तभी पूरा होगा व्हेन आई विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस जी स्टार इज. ये जी स्टार मेरे लिए क्या है, हमको ये पहले समझना है. तो जी स्टार मेरे लिए क्या है स्टूडेंट, यहां पर शुरू करता हूं ये समझना कि व्हाट इज दिस जी स्टार, ठीक है. मतलब जी स्टार मेरे लिए क्या है. जी स्टार इज रेफर्ड एज स्टूडेंट क्या ना, सेल कांस्टेंट. क्या कहा जाता है इसको ना, सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय द टर्म क्या स्टूडेंट ना, जी स्टार. किससे ये डिनोट होता है ना, जी स्टार से स्टूडेंट डिनोट होता है यहां पर. क्लियर, फाइन. आई विल नाउ प्रोसीड विथ फर्दर स्टडी यहां पर कि व्हाट दिस सेल कांस्टेंट इज. ये सेल कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट. मैं जो भी बात कर रहा हूं मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, मैं यहां पर सॉल्यूशन लेके बात कर रहा हूं. तो सॉल्यूशन का तुम समझ रहे हो, रेजिस्टेंस निकालना, कंडक्टेंस निकालना, कंडक्टिविटी निकालना इतना आसान नहीं है यहां पर कि तार के जैसा है, जोड़ दो और काम कर लो. इट्स नॉट लाइक दैट. You just fix up the wires around, put it through battery and get it done. ये इतना आसान जॉब नहीं है यहां पर. तो करना क्या है यहां पर ना, सिंस सॉल्यूशन फेज पर मेरा सारा काम चल रहा है यहां पर, therefore student we have to have some vessel type of thing where I will fill the solution, where I will fill the electrolytic solution to get the job done. यहां पर ठीक है, मैं पूरा का पूरा काम करने के लिए उस सॉल्यूशन को मैं क्या करूंगा, यहां पर फिल करूंगा एक सेल में स्टूडेंट. यहां पर एक सेल में मतलब एक वेसल में, और उसी सेल का नाम है स्टूडेंट क्या ना, कंडक्टिविटी सेल. क्या कहते हैं उसको, कंडक्टिविटी सेल. और वो कंडक्टिविटी सेल दिखता कैसे है स्टूडेंट ना, यू कैन गेट इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. मैं तुमको दिखा दे रहा हूं यहां पर कि वो कंडक्टिविटी सेल कैसा दिखता है. यहां पर दिस इज योर कंडक्टिविटी सेल. यू कैन सी दिस इज द वेसल. इसके अंदर मैंने डाल दिया सॉल्यूशन एंड दीज आर द टू इलेक्ट्रोड्स. क्लियरली विजिबल हो रहा है यहां पर. उसी तरीके से दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कंडक्टिविटी सेल जो कि सिलिंड्रिकल आकार में है, एंड द वर्क विल बी डन इन द सेम मैनर दैट विल बी डन बाय दिस वेसल. तो ये कांच का वेसल लिया हुआ रहता है, टू इलेक्ट्रोड्स हैव बीन फिक्स्ड, एंड जिस सॉल्यूशन पर एक्सपेरिमेंटेशन करता है वी फिल इट in this vessel and get the job done. Now student, what this two term is, यहां पर ये L और A क्या है. यहां पर इस चीज को हमको अब समझ लेना यहां पर कि L और A क्या है. यहां पर ना L is student distance between the two parallel electrodes. L जो होता है तुम्हारे लिए स्टूडेंट वो होता है distance between two parallel electrodes. क्लियर हो गया, फाइन. L is distance between two parallel electrodes. और area of cross section क्या है ना, area of cross section of this electrode is small a. इसका area of cross section is small a. I hope no problem, fine. तो कॉन्सेप्ट गोज आपको दिख गया. कंडक्टिविटी सेल क्या है, L और A क्या है, ये हमको मालूम चल गया स्टूडेंट, फाइन. ना स्टूडेंट, इफ आई टेक लेट दिस इज माई कंडक्टिविटी सेल फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मैं हल्का सा तुमको दिखा दे रहा हूं. ये मान लो मेरा एक कंडक्टिविटी सेल मैंने लिया, ठीक है, एंड लेट दिस इज माय इलेक्ट्रोड. ये मेरा इलेक्ट्रोड है, ये वाला मेरा क्या है ना, इलेक्ट्रोड है. दिस इज माय इलेक्ट्रोड, दिस इज माय इलेक्ट्रोड, ठीक है, फाइन, गुड. दिस डिस्टेंस, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है स्टूडेंट यहां पर, दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स इज L. डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स क्या है मेरे लिए ना, L है. कोई दिक्कत नहीं, फाइन, नो प्रॉब्लम. एंड दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये जो तुमको दिख रहा है, दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दिस इज योर एरिया ऑफ क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन. क्लियर, फाइन. सो
कंडक्टिविटी सेल क्या है ये मैंने बोल दिया है। इसके अंदर सॉल्यूशन भर के पूरा काम करना होगा और यही चीज जुड़ा हुआ रहेगा किसके साथ, तार के साथ, वायर के साथ, इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा थ्रू द बैटरी। आई होप नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एंड दे विल एक्ट एज क्या, ना इलेक्ट्रोड। तो ये मेरा पूरा सेटअप है और एल और ए का कॉन्सेप्ट यही है। सेल कांस्टेंट क्यों कहते हैं यहां पर ना स्टूडेंट, दिस रेशियो एल बाई ए इज फिक्स्ड फॉर क्या यहां पर ना, फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल। एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए एल बाई ए का रेशियो क्या होगा ना, फिक्स्ड रहेगा स्टूडेंट। फाइन। और स्टूडेंट इस तरीके से जो तुम्हारा वेसल है तो इसके अंदर हम घुस के यहां पर मेजर नहीं कर सकते कि चलो गोगोई जादूगर के तरह इसके अंदर से घुस जाओ और यहां पर मेजर कर लो कि भैया तुम लेंथ इतना हो, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स इतना हो और एरिया तुम एज नॉट पॉसिबल स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इन द फैक्ट्री इटसेल्फ ये डिस्टेंस वो मेजर कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर कर लेते हैं और स्टूडेंट सेल कांस्टेंट को यहीं पर कांच का बना हुआ है उसके ऊपर एनग्रेव कर देते हैं, उसके ऊपर एनग्रेव कर देते हैं कि जी स्टार फॉर दिस कंडक्टिविटी सेल इज दिस वन। सो सेल कांस्टेंट क्यों नाम दिया है, यू हैव गॉट इट। और ये सेल कहां से आया ना, बिकॉज दिस सेल इज रेफर्ड एज कंडक्टिविटी सेल। क्या रेफर करते हैं स्टूडेंट इसको ना, कंडक्टिविटी सेल। यू हैव गॉट दैट मच आइडिया, वेरी वेरी वेल, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया स्टूडेंट। फाइन। अब स्टूडेंट सेल कांस्टेंट का हम लोग डेफिनेशन को कर लेते हैं यहां पर। व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ दिस सेल कांस्टेंट ना, इट इज द रेशियो, इट इज द, मैं बोल भी जा रहा हूं यहां पर, ठीक है, मैं बोलते भी जा रहा हूं क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, तुम लोग बढ़िया से हमको जानते हो, ठीक है, फाइन। तो इसलिए मैं बोलते भी जा रहा हूं यहां पर, बोलने पर ज्यादा भरोसा रखो, देखने पर कम रखो, ठीक है। सो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या स्टूडेंट ना, बिटवीन, ऐसा परीक्षा के कॉपी में मत लिख देना एसएमएस लिखने के कारण, ठीक है, तुम लोग बहुत गलत आदत हो गया यहां पर, एसएमएस लिखने के तरह से तुम लोग आंसर में भी डाल देते हो यहां पर, ठीक है। सो ऐसा मत करना, मेरे को एक्सक्यूज कर देना, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, क्या हो गया यहां पर ना, टू, बिटवीन द टू पैरेलल, पैरेलल, बिटवीन द टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन द टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, टू द एरिया ऑफ क्या स्टूडेंट ना, इलेक्ट्रोड्स, टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, किसका, वो इंपॉर्टेंट है ना, ऑफ ए कंडक्टिविटी, ऑफ ए क्या, कंडक्टिविटी सेल। कोई दिक्कत नहीं, फाइन। सो दिस इज योर डेफिनेशन, बढ़िया से लिख लेना, सब बढ़िया से लिखवा भी दे रहे हैं, ओके फाइन। ना स्टूडेंट इफ आई गो इनटू यूनिट ऑफ दिस वन, इसका अगर मैं यूनिट में जाऊंगा यहां पर तो यूनिट इसके लिए क्या होगा, अब तुमको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद ही समझ गए हो स्टूडेंट, क्या हो जाएगा इसका यूनिट स्टूडेंट यहां पर ना, इट विल बी स्टूडेंट क्या यहां पर ना, एल बाई ए, एल अगर मैं सेंटीमीटर में लेता हूं और ए सेंटीमीटर, तो इट्स क्लियर कट, इट इज सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स भी हो सकता है लेकिन सेंटीमीटर इनवर्स लेके मैं काम कर रहा हूं, उसका कुछ कारण है, थोड़ी देर में मैं डिस्क्लोज करूंगा, कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक नहीं होना चाहिए। सेल कांस्टेंट क्लियर हो गया, फाइन। अब आते हैं स्टूडेंट, नाउ वी आर प्रिपेयर फॉर क्या स्टूडेंट ना, डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी। अब मैं तैयार हूं डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी करने के लिए, तो चलो डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी कर लेते हैं। यूनिट कर लिए, इसका भी यूनिट कर लिया, डेफिनेशन कर लिए, अब इसका स्टूडेंट डेफिनेशन को कर लिया जाए। लेट अस डिफाइन दिस क्या स्टूडेंट यहां पर ना, डिफाइन दिस कंडक्टिविटी, इसका डेफिनेशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहां पर, ध्यान से अब समझना, गौर करना स्टूडेंट, फाइन, फॉलो करना, गौर करना यहां पर क्या मैं करने जा रहा हूं ना, लेट, मैं ले रहा हूं इसका डेफिनेशन में ना, लेट एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और स्टूडेंट ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैं ले रहा हूं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर और ए मेरे लिए क्या मैं ले रहा हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेट मैं ये ले रहा हूं, ठीक है, फाइन। ना स्टूडेंट फिजिक्स में तुम लोग ऐसे ही करते हो, इफ यू रिमेंबर, तब मेरे लिए स्टूडेंट के क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा यहां पर ना, ये 1 ये भी 1, तो मेरे लिए क्या हो गया ना 1 बाई आर, दैट इज क्या ना जी, के इज इक्वल टू जी, मतलब क्या हो गया यहां पर ना, ये इंप्लाई कर रहा है यहां पर क्या ना, conductivity is the conductance of an electrolyte which is placed between parallel electrodes, separated by 1 centimeter, having area 1 centimeter square, आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। तो फिर मेरे लिए क्या हो गया डेफिनेशन स्टूडेंट, लिखो डेफिनेशन को, लिखो, मैं बोल दे रहा हूं, लिखिए, लिखो, ये पहले लिखो, ये L1 से ऐसा लिखो, फिर K इज इक्वल टू G करो, फिर इंप्लाइज दैट साइन करके लिखो अब डेफिनेशन, राइट इट, मैं बोल दे रहा हूं, लिखो, ठीक है, लिखो, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस
कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, केप्ट इन ए कंडक्टिविटी सेल, केप्ट इन ए कंडक्टिविटी सेल, केप्ट इन ए कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, सॉरी केप्ट इन बिटवीन, केप्ट इन ए कंडक्टिविटी सेल, उसके बाद लिखो इन बिटवीन पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, केप्ट इन ए कंडक्टिविटी सेल इन बिटवीन पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, इन बिटवीन पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, separated by 1 centimeter with area 1 centimeter square, with area 1 centimeter square. कर लियो? Fine, good. So I hope you have understood the definition very well. बढ़िया से तुमको समझा दिया है. अब स्टूडेंट मेरा नेक्स्ट काम को करने के लिए ये डेफिनेशन को हल्का सा मॉडिफाई करना होगा, इसलिए मैं डेफिनेशन को नहीं लिखा हूं यहां पर, ठीक है, तुमको लिखवा दिया, मैंने नहीं लिखवा है, ठीक है. मेरा डेफिनेशन कैसा होगा, अब ध्यान से सुनना यहां पर. दिस हैज गॉट ए सीरियस एप्लीकेशन एंड इंप्लीकेशन इन माय फर्दर स्टडी, ठीक है, ध्यान से समझना, यहां पर समझने की जरूरत है, ध्यान से समझना क्या मैं बोल रहा हूं. यहां पर मैंने क्या बोला ना, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है एक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कंडक्टिविटी है, तुम्हारे सामने है, ठीक है, फाइन. कब यहां पर ना, जब मैं सॉल्यूशन को डाल दे रहा हूं एक कंडक्टिविटी सेल में, जिस कंडक्टिविटी सेल का ये एल का वैल्यू क्या है ना 1 सेंटीमीटर और एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये मैं ले रहा हूं 1 सेंटीमीटर एंड दिस वन आई एम टेकिंग एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इफ आई आस्क यू स्टूडेंट प्लीज टेल मी द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टिविटी सेल, इसका वॉल्यूम बताओ ना कंडक्टिविटी सेल का, तो क्या जवाब हमको तुम दोगे यहां पर? ऑब्वियसली तुमसे मैं करेक्ट जवाब उम्मीद करता हूं एंड यू विल गिव मी सर द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टिविटी सेल विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब. एकदम सही जवाब दिया यहां पर स्टूडेंट, इट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब यहां पर. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, कांट आई से यूनिट वॉल्यूम. तो मेरे लिए डेफिनेशन क्या होगा यहां पर ना, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये मेरे लिए बहुत खास पॉइंट आ गया यहां पर, ठीक है, जो तुमको याद रखना होगा. तो लेट अस स्टार्ट विद द वर्किंग यहां पर. तब मेरे लिए डेफिनेशन थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में क्या आ गया स्टूडेंट यहां पर ना, कंडक्टिविटी is the conductance of क्या स्टूडेंट यहां पर, is the conductance of क्या स्टूडेंट यहां पर ना 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या इलेक्ट्रोलाइट, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. प्यार से आ गया यहां पर इसका डेफिनेशन, आई होप सबको समझ में आ गया यहां पर. सो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या इलेक्ट्रोलाइट. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं, याद रखना स्टूडेंट इस डेफिनेशन को और लिख भी लेना अपने कॉपी में यहां पर. फाइन. सो ये था मेरा लेखा जोखा, क्या क्या पढ़ लिया सब कुछ तुम्हारे सामने है, उम्मीद है समझ में आया. अब स्टूडेंट मैं क्या बात कर रहा हूं स्टूडेंट, हम तुमको बार बार बोल रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट क्या स्टूडेंट, यहां पर क्या बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन. हम लोग जो भी बात करेंगे यहां पर क्या लेके बात करेंगे, सॉल्यूशन. स्टूडेंट सॉल्यूशन जहां मैं लेके बात करूंगा स्टूडेंट, और सॉल्यूशन में कैरियर ऑफ करंट क्या है ना, आयन से. जहां मेरा आयंस चक्कर में आ गया तो स्टूडेंट सॉल्यूशन और आयंस मिलके एक टर्म अगर मैं इंक्लूड नहीं किया मेरे ये पूरे डिस्कशन में, एक टर्म को अगर मैंने इंक्लूड नहीं किया, देन माय स्टडी विल बी कंप्लीटली इन वेन. ये जो इतना पढ़े हैं वो बेकार हो जाएगा एक टर्म को मैंने अगर नहीं लाया यहां पर. कैन यू गेस व्हाट टर्म हैज टू बी इंक्लूडेड इन दीज सेक्शंस? यहां पर क्या आप तुम गेस कर सकते हो क्या टर्म मेरे को इंक्लूड करना चाहिए? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन का, मैं बात कर रहा हूं आयंस का. यहां पर एकदम करेक्ट तुमने गेस किया स्टूडेंट. वी हैव टू give the inclusion of a very important term, that is what student, now that is concentration of electrolyte. अगर मैं इंक्लूड नहीं किया यहां तो ये मेरा स्टडी कंप्लीटली बेकार है, पूरी तरीके से बेकार है. तो आई हैव टू इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या यहां पर, कंसेंट्रेशन इन दिस फॉर्मूले.
तभी जाके मेरा ये पूरा टास्क क्या होगा ना, कंप्लीट होगा स्टूडेंट। ओके, नाउ आई विल ट्राई टू इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन दिस डिस्कशन। और उसको स्टूडेंट इंक्लूड कैसे करेंगे यहां पर ना, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू टर्म, दैट टर्म विल बी रेफर्ड एज क्या स्टूडेंट, मोलर कंडक्टिविटी। दैट टर्म विल बी रेफर्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। और वो मोलर कंडक्टिविटी क्या है स्टूडेंट, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट एक चीज मेरा यहां पर छूटा हुआ दिख रहा है, व्हाट इज दैट स्टूडेंट ना, मैथमेटिकली मेरा स्टूडेंट क्या है यहां पर, ये मिस किया हुआ लग रहा है यहां पर। मैथमेटिकली जी स्टार इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, एल बाई ए। ये पहले भी बोल दिए हैं लेकिन मैथमेटिकली ये जानना जरूरी है। मैथमेटिकली जी स्टार इज इक्वल टू क्या ना, एल बाई ए। पहले ही बोल दिए बट एनीवे यहां पर दिस इज योर केस, ठीक है। मैथमेटिकली जी स्टार इज इक्वल टू क्या ना, एल बाई ए। यहां पर ये ऑलरेडी मैंने बोल दिया। अब चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज दैट ना, मोलर कंडक्टिविटी। जल्दी से देख लेते हैं व्हाट दिस टर्म मोलर कंडक्टिविटी इज, ठीक है। तो शुरू किया जाए यहां पर, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का स्टूडेंट सिंबल क्या होगा ये पहले देख लेते हैं स्टूडेंट तुरंत, ठीक है। व्हाट विल द सिंबल ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होगा स्टूडेंट दिस वन, उल्टा भी। कोई कोई बुक में स्टूडेंट ऐसा भी रहता है, लैम्डा एम, ऐसा भी तुम्हारा लिखा हुआ रहता है, लैम्डा एम ऐसा भी तुम्हारा लिखा हुआ रहता है, ठीक है, फाइन। एम स्टैंड्स फॉर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। ये है क्या यहां पर, व्हाट इज दिस, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट। ये क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज दिस, ये क्या है मेरे लिए यहां पर, व्हाट इज दिस, तुम तुरंत बोलोगे सर ये तो लैम्डा है, ये लैम्डा है। स्टूडेंट ये भी मेरे लिए लैम्डा है, दिस इज ऑल्सो लैम्डा, दिस इज कैपिटल लैम्डा। ये जो तुमको दिख रहा है यहां पर, ये मेरे लिए कैपिटल लैम्डा है। और जो तुम पहले से पढ़े हो इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, खास करके तुमने पढ़ा है यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट इस लैम्डे को यहां पर, ठीक है, लाइट जब डिस्कस कर रहे थे, दिस इज स्मॉल लैम्डा, ये कैपिटल लैम्डा, ये मेरे लिए क्या है ना, स्मॉल लैम्डा। हो गया, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैपिटल लैम्डा मेरे लिए सिंबल है मोलर कंडक्टिविटी का। अब आते हैं स्टूडेंट व्हाट दिस मोलर कंडक्टिविटी इज। यहां पर पहले मैं डेफिनेशन दूंगा और इस डेफिनेशन से पूरा निचोड़ निकाल के रहेंगे यहां पर कि ये मेरे को क्या बोल रहा है यहां पर, ठीक है, फाइन। सो राइट द डेफिनेशन एट फर्स्ट, तब आराम से क्लियर हो जाएगा। तो उसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज दैट स्टूडेंट ना, इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस, अगेन इट इज द कंडक्टेंस, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट या ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो मर्जी, बात वही है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। देखना, कंटेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है, फाइन, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, containing 1 mole of electrolyte, हो गया, placed between two parallel electrodes, separated by unit distance, separated by unit distance. This is your definition. ये मेरा हो गया क्या न, definition. It is the conductance of an electrolytic solution containing 1 mole of electrolyte placed between 2 parallel electrodes, ठीक है, separated by unit distance. ध्यान से स्टूडेंट इस डेफिनेशन को स्टडी करो, वीडियो पॉज करके डेफिनेशन को स्टडी करो और हमको बताओ एक चीज यहां पर मिसिंग है। यहां पर ये जो मेरा डेफिनेशन था स्टूडेंट कंडक्टिविटी का, ये जो मेरा डेफिनेशन था यहां पर, जो मैंने तुमको लिखवाया था यहां पर, वो डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में स्टूडेंट यहां पर एक चीज तुमको मिसिंग नजर आएगा। यहां पर एक चीज तुमको मिसिंग नजर आएगा, वो डेफिनेशन और ये डेफिनेशन में यहां पर व्हाट इज दैट मिसिंग थिंग, यहां पर वो मेरा मिसिंग चीज क्या है, यहां पर वीडियो पॉज करके हमको बताइए। एकदम सही तुमने पकड़ा स्टूडेंट। तुम बोलोगे सर यहां पर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, यहां पर दे आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो केवल बात कर रहा है किसके बारे में, गौर करो, कंटेनिंग, ये मेरे लिए की वर्ड है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, वो क्या, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
वो ये कीवर्ड के बारे में बात कर रहा है यहां पर। क्या बोल रहा है ना, कंडक्टेंस किसका ना, वो सॉल्यूशन का जिसमें क्या रहेगा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। यही मेरे लिए कीवर्ड है यहां पर, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस मतलब क्या, एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। ये अगर तुम लोगे यहां पर, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ नहीं है मतलब क्या ना, तुम्हारा कंडक्टिविटी सेल किसी भी वॉल्यूम का हो सकता है, इसका यही मतलब है, किसी भी वॉल्यूम का हो सकता है। बस एक ही मुद्दा है स्टूडेंट कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए ना, यूनिट डिस्टेंस। अगर सेंटीमीटर में मैं लूंगा 1 सेंटीमीटर, और उसमें एक ही कंडीशन लगा हुआ है, उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ओनली 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रहना चाहिए यहां पर। इफ आई टेक दिस कंडक्टिविटी सेल, तो ये तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी तुम ले सकते हो, लेकिन ये डिस्टेंस मेरे लिए क्या है ना, फिक्स्ड है। ये डिस्टेंस मेरे लिए फिक्स्ड है स्टूडेंट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम कुछ भी ले सकते हो। ये अगर सॉल्यूशन कम है तो छोटा लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वेसल छोटा हो जाएगा। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो बड़ा लो, वेसल बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी सेल बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस ये यही रहेगा, लेंथ बिटवीन पैरेलल इलेक्ट्रोड ये सेम रहेगा। तो ओवर ईयर स्टूडेंट, यहां पर मेरा जो डिस्कशन में आया, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ क्या स्टूडेंट, कोई लिमिटेशन मेरा यहां पर नहीं है। किस चीज का कोई लिमिटेशन नहीं है स्टूडेंट यहां पर ना, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ क्या स्टूडेंट यहां पर ना, वॉल्यूम। तुम वॉल्यूम कुछ भी ले सकते हो, बस एक ही चीज का लिमिटेशन है, वो क्या ना, इट शुड बी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या होना चाहिए यहां पर, केवल मेरा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, दैट्स ऑल। ये आपको दिमाग में रखना है यहां पर, ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। क्लियर, फाइन। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, गौर करना यहां पर मेरा मुद्दा क्या था, किस लिए ये टर्म लाए थे ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को इंक्लूड करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को इंक्लूड कैसे करेंगे आप देखना यहां पर, ठीक है, फाइन। गौर करना स्टूडेंट यहां पर मैथमेटिकली यहां पर, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट करके ये लाया गया था यहां पर, उसके अंदर और नहीं घुस रहे, तुम लोगों को भी घुसने की जरूरत नहीं है यहां पर। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट ना, के इंटू वी यहां पर, ठीक है। मैथमेटिकली लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी इनटू क्या ना, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये वी मेरे लिए क्या है स्टूडेंट यहां पर ना, वॉल्यूम, वी इज स्टूडेंट मेरे लिए क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक क्या सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है मेरे लिए यहां पर, वी मेरे लिए है वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। खास बात क्या है यहां पर, which contains, ये खास बात है, which contains, क्या contains स्टूडेंट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, which contains 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत खास बात है मेरे लिए स्टूडेंट यहां पर। V मेरे लिए क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन which contains क्या स्टूडेंट यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर मेरा क्या है ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब मैं ला रहा हूं क्या बात, यहां पर गौर करो, क्या मैं नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं, लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज सी मोलर, ठीक है, फाइन। ये मैं ले रहा हूं यहां पर, लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सी मोलर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो मैंने लिया है सी मोलर। ये क्या इंप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, सी मोलर अगर मैंने इसको लिया, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यू आर ऑल अवेयर, यहां पर कुछ बोलना नहीं है, यहां पर सब जानते हो ना, ये इंप्लाई कर रहा है सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं यहां पर, इज प्रेजेंट इन किसके अंदर स्टूडेंट, गौर करना, 1 लीटर सी मोलर, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन सब जानते हो यहां पर, तो प्रेजेंट इन क्या स्टूडेंट ना, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बदले में मैं एक नया टर्म ला रहा हूं यहां पर, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, बात वही है यहां पर, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या सॉल्यूशन, ये मैंने लिख दिया यहां पर। क्लियर, फाइन। तो लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सी मोलर मतलब जानते ही हो, सी मोल इन 1 लीटर, सब कुछ क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या इंप्लाई करना, सी मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन क्या 1000 ml, 1 लीटर 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सारा चीज सेंटीमीटर में कर रहा हूं, इसीलिए तो सारा चीज सेंटीमीटर में कर रहा हूं, इसी दिन के लिए सारा चीज मैंने अभी तक सेंटीमीटर में डिस्कस किया तुम्हारे लिए, ठीक है, फाइन, गुड। तो सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, फाइन। तो फिर नेक्स्ट लाइन में मैं आराम से लिख सकता हूं, तुम भी बोलोगे हाँ सर एकदम, 1 मोल
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर हो जाएगा स्टूडेंट, द 1000 बाई सी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, तो ये लाइन ध्यान से देखो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000 बाई सी सेंटीमीटर सोल्यूशन, यहां पर, ठीक है। ये मेरा मोल, ये मेरा मोल, और ये मेरा क्या आ रहा है ना, वॉल्यूम आ रहा है। ये मेरा 1 मोल, ये क्या आ रहा है, वॉल्यूम। और तुमने भी अभी क्या लिखा था ना, 1 मोल जिस वॉल्यूम में रहेगा, देखो, इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन्स क्या, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मेरे लिए स्टूडेंट अब मैं आराम से लिख सकता हूं, वो क्या यहां पर ना, देयरफॉर this molar conductivity is equal to conductivity into क्या ना, this V, and this V will be replaced by क्या यहां पर ना, 1000 by क्या, C, it will be replaced by 1000 by C। अब देखो मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म को इंक्लूड कर दिया, जो मेरे से हाथ से दूर था, अब मैंने उसको इंक्लूड कर दिया किसके अंदर ना, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के थ्रू से इसको मैंने रिलेट कर दिया। अब मेरा फुल प्रूफ डिस्कशन हो गया, अब मेरा फुल प्रूफ डिस्कशन हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, क्लियर, फाइन। यहीं से, यही वाला फॉर्मूला से ये आ गया, फाइन। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट इसका यूनिट देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कुछ है नहीं यूनिट में। इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहां पर ना, इसका अभी मैंने किया था साइमन पर सेंटीमीटर, और कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, सब जानते हो यहां पर। तो फिर मेरे लिए ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये मेरा होगा यूनिट, ठीक है, फाइन। एंड स्टूडेंट सेंटीमीटर से सारा काम हमको करना होगा, ये याद रखिएगा। कभी कभी स्टूडेंट तुमको मीटर से भी दे दिया जाता है यहां पर, मीटर से भी तुमको दे दिया जाता है यहां पर, ठीक है, फाइन। तो मीटर से मेरा क्या होगा यहां पर, किस तरीके से मैं रिलेट करूंगा स्टूडेंट मीटर के साथ यहां पर, ठीक है, 1 साइमन, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, फाइन। ये वाला एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन तुमको मैं छोड़ के जा रहा हूं यहां पर। ऑनेस्टली अपना मैथ्स का बैकग्राउंड लगा के हमको बताना कि यहां पर क्या कन्वर्सन फैक्टर हम डालेंगे ताकि ये दोनों रिलेट हो जाए यहां पर, ठीक है, ताकि ये दोनों रिलेट हो जाए यहां पर। क्या कन्वर्सन फैक्टर मैं डालूंगा ताकि ये दोनों रिलेट हो जाए, ऑनेस्टली विदाउट सीइंग एनी बुक। यहां पर देखे तुम्हारा मैथ्स कितना बढ़िया, यहां पर अगर बढ़िया नहीं होगा तो भेज देंगे प्राइमरी सेक्शन में फिर से, ओके, फाइन। बट दैट वाज जस्ट किडिंग पोर्शन यहां पर। तो आपको यहां पर ये चीज भरना है स्टूडेंट। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा, इसी फिल इन द ब्लैंक्स के साथ मेरा नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा, विच विल फॉलो न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, फाइन। तो स्टूडेंट बढ़िया से इसको फॉलो अप कर लो, नोट बना लो, ठीक है। और स्टूडेंट चाहो तो 100 बार देख लो, नहीं समझ में आ रहा है यहां पर, ना समझने वाला कोई बात ही नहीं है यहां पर। आपको मैं ये कर रहा हूं, अगर तुम ऑनेस्टली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, फॉलो करोगे, तो तुमको दोबारा भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। दैट इज माई श्योर शॉट, मतलब क्या यहां पर ना, ट्रस्ट ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ जेवीएम शैमली। यहां पर मेरे को पूरा ट्रस्ट है शैमली का कि वो दोबारा ये वीडियो देखेगा भी नहीं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है, फाइन। सो विद दैट नोट आई एम लिविंग द लेक्चर टिल दिस पोजीशन। यहीं से मेरा नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा। टिल वी मीट अगेन, स्टे सेफ एंड थैंक यू।